હેલો, નમસ્કાર. કેમ છો? મજાનો દિવસ છે આજે. શુક્રવાર છે એટલે. હવે શુક્રવારની ખાસિયત શું છે ખબર છે? ધીમે રહીને આપણને શનિવાર અને રવિવાર તરફ લઈ જાય. રવિવાર ખોટો જ આપણે વખાણી લીધો છે, બાકી એની પાછળ છે કશું નહીં. રવિવાર પછી તો નોકરી કૂટવા સોમવારે આપણે પહોંચી જવું પડતું હોય છે, પણ શુક્રવાર તમને ધીમે રહીને શનિવાર અને રવિવારની રાહત તરફ લઈ જાય. વીકેન્ડનો માહોલનો આખો મૂડ સેટ કરી નાખે. આજનો આ માહોલ અમારે ત્યાં પણ જરાક જે રીતની મોસમ ચાલી રહી છે ને એવી જ રીતે ખુશનુમા ગોઠવાયો છે. ખૂબ સુંદર રીતે અહીંયા અમારું વાતાવરણ આજે જામી ગયું છે. આમે ઋતુ સંધિનો ગાળો છે. તમે જુઓ, ચારે બાજુ ફૂલો છે, આમ ઠંડો ઠંડો હળવો હળવો પવન છે, શિયાળામાંથી ઉનાળા તરફની ગતિ છે. આમ બહાર નીકળીએ તો બપોરે જરા થાકી જવાય, પણ હજી પણ રાત અને સવાર જરા મજાની છે. આમ મજા પડી જાય એવું વાતાવરણ છે. આજના આ ખાસ દિવસે અમારે ત્યાં પણ કંઈક જુદી રીતનું એક આખું વાતાવરણ ઊભું થવા જઈ રહ્યું છે. એનું કારણ છે અમારી સાથે જોડાયેલા આ એક ખાસ મહેમાન. આ મહેમાન અમારે ત્યાં આવતા મહેમાનોથી જરા જુદા છે. કઈ રીતે હું તમને કહું. અમે ગુજરાતી સંગીત સાહિત્ય સાથે સંકળાયેલા લોકો છે, અને મોટે ભાગે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, ગુજરાતીના સાહિત્યના કલાકારો કે લેખકો કે સંગીત સાથે સંકળાયેલા કલાકારો સાથે વાતચીત કરતા રહેતા હોઈએ છીએ. બોલિવૂડ કે હિન્દી ટેલિવિઝન કે હિન્દી માધ્યમોમાં કામ કરનારા કલાકારો સાથે વાત કરવાનું અમારે ત્યાં ઘણું ઓછું બને છે, પણ આ કાર્યક્રમથી અમે એ તરફ પહેલું પગલું માંડી રહ્યા છીએ. અને આજે અમારા આ સુંદર મજાના ઉપક્રમની સરસ મજાની શરૂઆત કરવા માટે અમારી સાથે એક એવું વ્યક્તિત્વ જોડાયું છે जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं. आप इनको कई बार आजकल बहुत सारी वेब सीरीज में या तो फिल्मों में देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, वन ऑफ वेरी ટેલેન્ટેડ our favorite કઈ રીતે હું તમને કહું, અમારા ઘરના પણ છે. થોડી વારમાં એ આખી વાત કરું, પણ પ્લીઝ પુટ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર ફોર સની હિન્દુજા. તો અત્યાર સુધી શુદ્ધ દેશી સંવાદમાં તમે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલા કલાકારોને સાથે વાતચીત કરતા મને જોયો છે. આજે હું સનીને સાથે વાત કરીને એક નવી દિશા તરફ અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એટલે પણ આ અમારા પહેલા માનવંતા મહેમાન છે એ તરફના, એટલે એક વખત ફરીથી સની હિન્દુજા માટે અને શુદ્ધ દેશી સંવાદ. હવે આ ઘરના કઈ રીતે છે એ વાત અમે વાતચીત કરીએ ત્યારે ફોડ પાડીને તમને કહીશું, તમે સમજી જજો. બાકી આપણા અમદાવાદના જમાઈ છે, કુમાર છે. ઓકે, એટલે તમે જુઓ ટેબલ પર અમે એમને લીંબુ શરબત આપ્યું, અમે નથી પીધું. કુમાર પહેલા. So we welcome you. Thank you for joining us. Thank you very much. Thank you for such a lovely introduction. Thank you. और शुक्रवार का शुक्र मुझे होना चाहिए कि आपने मुझे क्या बोला. अरे बिल्कुल नहीं. आप यहाँ पे एक तो થોડું કામ પારિવારિક સંબંધ જેવું છે, સીધું નહીં ને આડકતરું નહીં ને બધું ભેગું, તો પણ અમને એમને ટેલિવિઝન પર જોઈને કોઈ ઘરનું વ્યક્તિ ક્યાંક પહોંચ્યું હોય એનો જે હરખ ને આનંદ થાય ને એવું થયા કરે છે. सो आप जहाँ पे भी है आजकल जैसे भी आप जैसे किरदार निभा रहे हैं, जिस तरह के रोल कर रहे हैं, एक पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी एक बहुत ही अच्छे से जिसको हम जानते हैं उसका कोई बहुत ही क्लोज आज इतनी तरक्की पे है. पर्सनली आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू एंजॉयिंग दिस फेज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर और इन एनी फील्ड कनेक्टिंग टू आर्ट, आपको ये अच्छा लगता है कि लोग आपका काम देखें. अब वो सराहते हैं कि नहीं सराहते वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट उसकी रीच हो. तो अब सबसे पहली लड़ाई वही होती है कि वो पहुँचे आपका काम, उसके बाद वो अच्छा होता है, पूरा होता है, वो अलग बात है. बट एक बार पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वो पहली सीढ़ी होती है मुझे लगता है, क्योंकि हम अपनी तैयारी, अपनी चीज़ें, अपनी सब कुछ करते रहते हैं, पर जब तक वो लोगों तक ना पहुँचे तो फ़ायदा नहीं होता है. तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट वो पहुँची है. और मैं सिर्फ यही प्रे करता था कि पहुँचे, लेकिन अब वो पहुँचने के साथ इतना प्यार मिल रहा है, वो मेरे लिए बोनस है. और वो प्यार मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत इंस्पायर कर रहा है, बहुत दुआएं दे रहा है, बहुत ब्लेसिंग दे रहा है, और मुझे इंस्पायर कर रहा है कि और बेहतर तरीके से
और बेहतरी से और निखार के साथ काम करूँ, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह फील होता है, जो कि अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स स्ट्रगल रही ये FTII से निकल के यहाँ तक पहुँचने में, कुछ ऐसा फेज भी आया होगा जब ऐसा लगा होगा कि कुछ गलत हो गया क्या, ये कुछ जम नहीं रहा है, ऐसा कुछ रहा? हाँ, कैसे रही मतलब सफर? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, किसी की भी फील्ड हो, कोई भी कोई मुकाम हासिल करना चाहता हो, तो स्ट्रगल तो हर किसी की होती है। और ये नहीं कहूँगा कि मेरी नहीं थी, और ये भी नहीं कहूँगा कि मेरी किसी दूसरे से बड़ी थी, क्योंकि हर किसी का एक लिमिट होता है, ऊपर वाला वो देखता है, उसको उस लिमिट के हिसाब से देता है कि ले तो ये सही है। और मेरा ये मानना है स्ट्रगल को लेके, स्ट्रगल आई लाइक टू कॉल इट अ चैलेंज, व्हिच इज अ बेटर वर्ड, क्योंकि वो चैलेंज या सिचुएशन, सो टू से, वो चीज आपके पास जब आती है ना, वो मैं अब समझाऊं, पहले नहीं समझ में आता था, वो चीज आपको कुछ सिखाने आती है। जितना ज्यादा आप अगर बोलोगे कि स्ट्रगल किया है, उतना ज्यादा आपने सीख लिया, क्योंकि आप वहां से बाहर आए हो। तो हम हमेशा जब भी वो ऐसी सिचुएशन या ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हम जितना जल्दी समझ जाए उस चीज़ को, उतना बेहतर होगा। तो वो चीज़ इतना सिखाती है ना, इतना ज़्यादा सिखाया है, और वो चीज़ें मैं ये कहूँगा कि सबको अपने हिसाब से मिलती है वो, लेकिन आपका इंटेंट, आपकी शिद्दत और आपका हार्डवर्क और पैशन, वो अगर इन टैंडम रहता है, तो मुझे लगता है कि हर कोई भी, मैं अगर निकल सकता हूँ तो कोई भी उससे निकल सकता है। और फिर वो स्ट्रगल नहीं, वो फिर चैलेंजेस हर स्टेज पे आते रहेंगे, वो आपको कुछ सिखा के जाते रहेंगे। तो मेरे लिए वो बहुत ही इट वाज अ वेरी वेरी प्लेजेंट, ऑफ कोर्स आई विल नॉट से इट वाज अ रोजी पाथ, ऑफ कोर्स चीजें थी, डाउट्स थे, फ्रस्ट्रेशंस थे, आई डोंट टेक अवे ऑल दैट, ऑफ कोर्स आई वाज disappointed, disheartened, frustrated, all those things happened, but मेरे लोग थे मेरे आसपास जिनकी वजह से मैं संभल गया, और ये समझ आई मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ पार्ट ऑफ लाइफ है। जो मैंने जैसे कहा कि एक पहली लड़ाई होती है लोगों तक पहुंचना, दूसरी है कि और ज्यादा लोग, तीसरी है कि और ज्यादा, तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट। एब्सोल्युटली। सो आई ऑलवेज टेक इट लाइक ये वापस एक बिगनिंग की तरह है। अब ये जो चैलेंजेस हैं बढ़ गई है, क्योंकि कुछ एक अच्छी किरदार मिल गए हैं, ज़्यादा लोकप्रियता हो गई है, तो अब ये स्ट्रगल ये हो गई है कि अच्छे किरदार मिलते रहें। कहीं ना कहीं आजकल की जिस तरह से दुनिया है सोशल नेटवर्किंग की, जहाँ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है, हमेशा दिखते रहना पड़ता है, तो अब ये चैलेंज वैसी हो गई है कि नहीं, कुछ अच्छा मिलना चाहिए, हर 6 महीने में कुछ आना चाहिए, कोई तो OTT पे, कुछ तो फिल्मों में। सच्ची बोलूं तो मेरे को जो आप ये प्रेशर वाली बात कर रहे हैं, डर वाली बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि मैंने जो भी इतना मिला है, मैंने शायद ये भी नहीं सोचा था, तो मेरे लिए अब जो हो रहा है वो बोनस ही है। अब मुझे पता है कि जो मैं सोचता था मेरी लिमिट थी, उससे ऑलरेडी ज्यादा हो गया, तो अब इससे मतलब ये बेटर ही होगा अब इससे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे ये लगता है कि जो मिलेगा उसको मैं कैसे करूँगा, क्या किस निखार के साथ जो मिल रहा है मुझे वो करूँगा मैं, और किस समझ के साथ, किस ग्रोथ के साथ, मेरा फोकस वहाँ रहता है। मतलब एकदम ये सनी हिंदुजा पर्सनल लाइफ में भी संदीप भैया है कि जो अपने आप से ही सीख के फिर लोगों को सिखाते हैं, और ये इतना ज्यादा इंस्पिरेशन का ऐसे एकदम मुझे लगा कि नहीं कहेंगे कि नहीं अभी तो मेरे को बहुत सारे किरदार करने हैं, अभी तो जस्ट शुरुआत में, पर मैं खुश हूँ। सो ये जो संदीप भैया ये थे, या आपने ऐसे आप थे और आपको मिल गए, या आपको मिले इसलिए आप ऐसे हो गए? मैं आपका पिछला वाला वो करेक्ट करूंगा। हैविंग सेड दैट, मुझे करने हैं बहुत सारे रोल्स करने हैं मुझे बहुत कमाल के रोल करने हैं, बट हाँ, मैं उस चीज के लिए लड़ूंगा नहीं। मैं तैयार रहूंगा तो वो आ जाएगा। ये समझ आ गया है मुझे कि जो मुझे बेहतर रोल की मंशा रखनी है वो रखनी जरूरी है। वो कब मिलेगा वो नहीं पता मुझे, मतलब लेकिन गीता का पूरा सार संदीप भैया ने एकदम अपने आप में ऐसे निभा लिया है कि जब जो होना है तब सो होना है। आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता से मुझे याद आया, अगर आपने इस चेहरे को सबसे पहले कहीं देखा होगा तो वो कुछ एक ऐसे किरदार रहे होंगे जहां पे उनका सीधे राब्ता हुआ था गीता के साथ। एपिक चैनल पे कुछ एक एपिसोड्स हिस्ट्री के आए थे, और माइथोलॉजी के कुछ एक एपिसोड्स में आपने कृष्ण का और राम का और ऐसे किरदार भी किए थे, तो ये वहां से भी आई थिंक।
हाँ मतलब ये मुझे लगता है कि वही जो आपने बोला ना, ये जो जर्नी है ये सब वहीं से आता है, और इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके की जर्नी हुई है, शायद आज मैं इस तरीके से बात कर पा रहा हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। और रही बात गीता की, मुंह तो आपको ज्यादा समझ है आप सब पकड़ के सब चीजें बता रहे हैं। અમારું તો એવું જ છે, કામ કરો ફળ મળતું જ નથી જે જુદા પ્રકારના ફળો મળે છે, ફળો ભાવતા નથી। इंदौर की एक छोटी सी कस्बे से या तो इंदौर की किसी एक जगह से आप मुंबई में आज इतनी बड़ी तादाद में अपनी जगह बना चुके हैं। जब इंदौर में थी ये सब सोचा था, सराफा बाजार में घूम रहे थे तब? ऐसा सोचा तो नहीं था, बट हाँ मेरा प्लान 7 से था। तो पहले से एक्टर बनना? 7 से मुझे था कि मुझे एक्टर बनना है और कुछ लाइफ में बड़ा करना है, वो था, वो हमेशा से था। कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से, वो नहीं सोचा था कभी भी, क्योंकि वो ही एक इनोसेंस, एक इनिशियल ट्रूथ और एक सच्चाई वाला जो थॉट था, तो उसी थॉट ने शायद आज भी पकड़ के रखा है। तो वो एक थॉट था, और उसको फिर धीरे धीरे वो एक बीज, सो टू से, वो बीज आज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो सोचा है और जिस दिशा में सोचा है उस दिशा में आप जा रहे हो। So I think I only feel grateful. So इंदौर से मुंबई की जर्नी आपकी वाया अहमदाबाद से होके भी जाती है। ये जो आपने बीच में यहाँ पे एक अच्छा सा जंक्शन बना लिया है, इस बात का भी थोड़ा सा तो जिक्र बनता है, कारण કે અમદાવાદમાં બેઠા છે અને મેં કીધું એમ અમદાવાદનો જમાઈ છે, કુમાર છે, तो ये प्रेम कहानी विषय ये मैं कहूँगा एक बात कि इंदौर से मैं बॉम्बे तो पहुंचा हूँ, लेकिन अगर अहमदाबाद नहीं आता ना बीच में, तो शायद मुझे लगता है कुछ नहीं हो पाता लाइफ में। सर ऑन दैट नोट तो आजकल इंडिया में कहीं पे भी जाना हो आपको अहमदाबाद से जाना पड़ता है, तो आप अहमदाबाद को भूल नहीं सकते। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को ना वो गाना बहुत अच्छा लग गया था, वो जस्सी गिल का दिल ले गई कुड़ी गुजरात। मैंने कहा चलो। तो ये मामला कहाँ पे सेट हुआ, मतलब पुणे में एफटीआई? जी एफटीआई में हम लोग बैचमेट्स थे, और जो मेरा था कि अगर इस फील्ड में जाना है, फ्रैंकली स्पीकिंग एक्टिंग अगर परस्यू करनी है, तो फिल्म इंस्टीट्यूट आना था। तो फिल्म इंस्टीट्यूट मतलब कोई भी फिल्म इंस्टीट्यूट आता है तो मेहरबानी ऊपर वाले की एफटीआई में हो गया, और डबल मेहरबानी है कि वहाँ मुझे शिंजनी मिल गई। तो वहाँ जो है हमारी जीवन की गाड़ी वहाँ शुरू हुई, और वहाँ हम पहली बार बने, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। એબ્સોલ્યુટલી હું જે ક્યારનો આ જમાઈને કુમારને બધું બોલ્યા કરું છું, ત્યારે તમને કદાચ આ જાણવામાં મજા પડે, સનીનું ના ઇનલોઝનું અહીંયા અમદાવાદમાં ખાસું વર્ષોથી છે, અને મારા જે ગુરુ છે, જેના કારણે હું આજે આ બોલી શકું છું, આ બેઠો છું જે જગ્યાએ બેઠો છું, જનક રાવલ, એમના દીકરીના હસબન્ડ એટલે જમાઈ છે, એટલે અમારે ઘરનું બધું આવું બધું અમે ગોઠવી નાખ્યું છે। પણ આજે હું જે જગ્યાએ છું એ જગ્યાનું કારણ પણ જનક રાવલ છે, અને આપણા ગુજરાતી ભાષાના કેટલાક શ્રેષ્ઠ નાટ્ય સાહિત્યકારો નાટ્યકારોમાંના એ એક છે, અને પોતાની રીતે નાટ્ય વિષયને એમણે ઘણું અભ્યાસપૂર્ણ રીતે લોકોની સમક્ષ પ્રસ્તુત કર્યું છે। એટલે બીજું બધું કંઈ નહીં, સનીના નામે તમે પણ એક કામ કરો, મારી સાથે જનકભાઈ અને શિંજીનીને યાદ કરીને જોરદાર તાળી સાથે। कभी किसी भी कारण के साथ, चाहे कारण हो भी नहीं, आप अपने गुरु को तो हमेशा याद कर सकते हैं। On that note, I salute them, and sir, thank you very much for everything. Thank you. Okay, Sunny. So what now? संदीप भैया, मिलिंद, बहुत सारे ऐसे किरदार जो लोग आपको देख के मतलब उनके चेहरे पे आ जाते हैं, उनकी नजरों के सामने आ जाते हैं। अब क्या एक्सपेक्ट करें सनी से, आगे की जर्नी क्या रहेगी, क्या प्रोजेक्ट्स, व्हाट आर यू रियली अप टू? तो एक प्रोजेक्ट है, रेलवे मैन नाम है उसका, जो यशराज ने बनाया वाईआरएफ की, दैट्स द फर्स्ट वेब सीरीज, सो आई विल बी पार्ट ऑफ दैट। एंड मैं गुजरात में इसलिए आया था क्योंकि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स का वेब सीरीज है जो शूट हमारा चल रहा था, उसके लिए मैं आया था। उसमें आपके गुजरात के एक और बहुत उम्दा कलाकार हैं, प्रतीक गांधी। अरे वाह, क्या बात, हम दोनों उसमें हैं। और एंड देन एस्पिरेंट्स 2 की शूटिंग शुरू हुई। अरे क्या बात है, मतलब संदीप भैया की कहानी और देखने को मिलेगी। जी जी जी।
गुजराती फिल्मों में आप देखते हैं, गुजराती फिल्मों में आपको कुछ? मैंने वो देखी थी जो जिसमें वो गाना है ना, बाजो रे ढोल, हाँ, हेल्लारो। हेल्लारो हाँ, हेल्लारो, भाग्यो भाग्यो रे ढोल। भाग्यो रे ढोल। हाँ वो देखी थी मैंने, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। कभी ऐसे just because you have a अहमदाबाद connection, कभी गुजराती फिल्मों में काम करने का इरादा, नहीं, कोई इरादा ऑफर करे? मेरा इरादा कहीं भी काम करने का है, जहाँ बढ़िया मिल जाए काम में बात करने તો ગુજરાતી ફાવે છે? ભાવે છે એકદમ સરસ, ગુજરાતી પણ ભાવે છે, ગુજરાતી લોક પણ ભાવે છે। क्या वैसे वो फावे छे होता है। भावे છે, आप भावनाओं को समझे ना। भावना में गलत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So अब मुंबई में आप अपनी जगह बना चुके हैं, अपने दोस्तों को भी तरक्की पे देखते हैं, जी इतने सारे किरदार आपने निभा लिए हैं, शहजादा में तो विलन भी हो गए। जी जी जी। ये विलन क्यों बने, मतलब ये सिर्फ ऐसा कोई हीरो ही बनूंगा विलन बनूंगा या ऐसा कुछ नहीं रहा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता है, करने वाले की सोच छोटी या बड़ी होती है। पर वो जो इंप्रेशन वाला मामला है कि अब सारे वो विलन वाले रोल ऑफर होंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ अब रहा है ऐसा? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आप ही की सोच है, कि आप ही सोचते हो कि अब मेरे को यही मिलते रहेंगे, मैं यही करूंगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर आपके ऊपर भी है ना, कि आप किस तरीके से कौन से रोल करते हो और क्या करते हो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन जो हम बातें करते हैं कि आप टाइप कास्ट हो जाते हो, वो आपके दिमाग में आप पहले होते हो, फिर आपको जनता करती है। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे ऐसा लगता है आप हर रोल को एक नए सिरे से नए तरीके से अगर करोगे तो आई डोंट थिंक सो, बट एट द सेम टाइम टू बी प्रैक्टिकल यू आल्सो हैव टू थिंक कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के सारे रोल भी करते रहें, और जितना हो सके अपनी तरफ से, क्योंकि आई वुड नेवर लीव अ गुड स्क्रिप्ट फॉर समथिंग कि ये रोल मुझे वैसा लग रहा है। इफ स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, देन इट डज नॉट मैटर, देन इफ इट इज अ रिपीट आल्सो, वो मजा आना चाहिए बस। सो वेब सीरीज ने आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में अच्छी खासी लोकप्रियता दी, फिल्मों में भी अब आप नजर आने लगे, क्या ये मीडियम कौन से ज्यादा पसंद है, वेब सीरीज अच्छा लगता है, फिल्में ज्यादा, व्हाट डू यू प्रेफर, या ऐसा कुछ होता है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कोई एक्टिंग अलग नहीं करते हैं, चाहे वो फिल्म हो या वेब सीरीज। ऑनेस्टी और उतनी शिद्दत और वो जो सच दिखाना होता है, वो चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज हो। फिल्म इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो फिल्मों को बचपन में इतनी सारी फिल्में देखी और वहाँ से जो ख्याल आया कि ये करना है मुझे, तो वो मेरी एक सच्चाई थी कि यहाँ मुझे पहुँचना है और ये करना है। और ओटीटी इसलिए स्पेशल है क्योंकि ओटीटी के ज़रिए मैं आज फिल्म भी कर पाया। तो मेरे लिए ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि अलग अलग मीडियम है, अलग अलग तरीके हैं। क्योंकि देखो फिल्म की स्पेशलिटी है कि यू गो इन थिएटर, एक साथ मिलके सब सेलिब्रेट करते हैं और एक साथ मज़ा लेते हैं किसी चीज़ का, वो हमेशा रहेगा। और ओटीटी का ये है कि आपको जब आपकी सुविधा के हिसाब से जब जितना देखना है, जिस समय देखना है, लेट के देखना है, फ़ोन पे देखना है, जो करना है, सो इट्स ऑल अवेलेबल फॉर यू। एंड बहुत अच्छा है कंज्यूमर्स के लिए भी, जो जिस हिसाब का देखना चाहता हो उसके लिए वो अच्छा है। लेकिन मेरे लिए फ़र्क नहीं है, मेरे लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। मेरे लिए तो ओटीटी बल्कि एक सीडी है, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ऑफ कोर्स आगे जाके डायरेक्शन में, स्क्रिप्ट राइटिंग में ऐसा कुछ करने का सोचा या एक्टिंग? समझ होती है उसमें क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर्स जो होते हैं, मुझे लगता है वो नींव है हमारे इंडस्ट्री की, वो रूट्स हैं सो टू से। और हम जो है बाद में एंड में थोड़ा सा एक नींव बन के पूरा पेड़ बन जाता है, फिर एंड में पत्ते फूल की तरह जो भी दिख जाते हैं हम लोग, वो हमारी खुशकिस्मती है। पर असली नींव जो होती है वो राइटर्स की होती है, वो बहुत मुश्किल होता है। डायरेक्शन उसकी भी मुझे समझ नहीं है, बट अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो मैं शायद प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। क्योंकि अगर या तो कोई अच्छी कहानियाँ अगर बतानी हो या अच्छी कहानियाँ लोगों तक पहुँचानी हो, अच्छे टैलेंट्स, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं जिनको शायद मौके की जो तलाश होती है ना, जो मैंने फेस किया है थैंक्स टू ओटीटी, कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं, इतनी सारी आपको चॉइसेस मिलती हैं, तो वो उसके बावजूद मुझे लगता है कितने टैलेंटेड लोग रह जाते हैं। तो फॉर दैट एंड प्रोबेबली इफ आई हैव टू से सर्टेन स्टोरी इन अ सर्टेन वे, तो उस कारण की वजह से मैं वो सोच सकता हूँ। बाकी मेरे को उतनी समझ नहीं है बाकी चीज़ों की, इसलिए मुझे नहीं लगता।
तब कुछ और कर पाऊंगा। और कहानियों की बात की आपने, कैसे किरदार आपके दिमाग में है? कैसे करना चाहेंगे? कोई ड्रीम रोल, हाँ, कोई एक एक्टर जिसे आप फॉलो करें, या ऐसा कोई किरदार या ऐसी कोई फिल्म? एक्टर्स तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ। मैं मुझे फ्रॉम अगर यहाँ देखा जाए तो इरफान साहब मेरे को सबसे पहले आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि नहीं किया होता उनके साथ काम, और 10 साल नहीं करता, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद तो रहती है। तो वो सबसे पहला दुख मुझे वही होता है, क्योंकि मैं उनको बहुत आइडलाइज किया है, मैंने बहुत उनकी फिल्में देखी हैं, तो वो एक मलाल रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। एंड थैंकफुली people like Manoj sir, whom I've worked with, Nasir Saab. So I really look up to these people, and of course, from Pacino to Brando to all these people, I look up to, Robert De Niro. तो ये मेरे इंस्पिरेशन का सवाल क्या था? किरदार। हाँ, किरदार ये था कि मुझे बायोग्राफीज बहुत पसंद है, और मैंने एक डॉक्यू ड्रामा किया था रविंद्र कौशिक के ऊपर, तो मुझे वो एक फुल फ्लेजेड फिल्म अगर उस पे बने, शायद बन रही है शायद कोई और कर रहे हैं उसमें तो वो मेरी इच्छा है, मतलब करने की। अच्छा, नेवर नो, वेब सीरीज में बन जाए तो देखेंगे। जनक सर वैसे हमारे गुजराती भाषा के बहुत अच्छे जाने माने नाट्य डायरेक्टर हैं, उनके साथ आप कभी काम करना चाहेंगे? हमारे सर हैं, हम ऐसे, तो मेरा मतलब ये मेरी खुशकिस्मती होगी अगर वो मुझे अपने साथ काम करवाएं तो। सर एक थिएटर फेस्टिवल हो रहा है 27 को, हमको एक नाटक भी करना है। आप जुड़ जाएंगे? मेरे को बोलेंगे तो मैं जुड़ जाऊंगा। बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। अहमदाबाद से कोई एक चीज आप मुंबई ले जाना चाहें तो क्या ले जाएंगे? वैसे एक चीज तो आप उठा चुके हैं, ले लिए मैंने। और अहमदाबाद से एक खास खूबी अगर आप मुंबई ले जाना चाहें तो क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अहमदाबादियों का ना दिल बहुत बड़ा है, मतलब दे ऑलवेज रेडी, एंड दैट स्वीटनेस कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, तो दैट वो भाव मैं ले जाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। जो ओपननेस और वो जो स्वीटनेस वाला भाव है ना, वो आई सी, इनफैक्ट वो कई बार बातचीत में भी आता है ना, मतलब उसमें देखो कितनी मिठास है। मतलब ये अगर हम हंस के बोल दें या जैसे भी बोल दें, पर वो जो एक मिठास, एक जो मीठा भाव है ना अहमदाबादियों का, वो मैं लेके जाना चाहता हूँ हमेशा। वाह भाई वाह, वो मजा पड़ गई। थैंक यू वेरी मच सनी। एक छोटा सा आपसे एक काम करवाना चाहूंगा। बहुत सारे गुजराती कलाकार हैं जो आपको देख रहे होंगे अभी, या शायद हम YouTube पे डालें तब आपको बहुत सारे कलाकार देखेंगे जी। कुछ कहना चाहेंगे उनसे? कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, कोई पीस ऑफ एडवाइस, एनीथिंग कलाकारों को? एक ही मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि ये कलाकार भी हो या जो भी हो लाइफ में, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, वो दिल से करो। हम कहाँ रह जाते हैं, दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं और दूसरे लोगों के ओपिनियंस लेते हैं। ये चीज़ें जो है, दूसरे लोगों की ओपिनियंस और दूसरे लोगों की बातें कि वो क्या सोचेंगे, ये मेरे हिसाब से एक नॉइस है। आपको अपने अंदर की वॉइस सुननी चाहिए, तो वो जो कहता है ना वो सच है, और उसमें सही और गलत कुछ नहीं होता है। सही और गलत सब आपके दिमाग में होता है। आप जो कर रहे हो, जो आपने डिसाइड किया है, वो सही है। वो अंदर से जो फील होता है ना, ऑलवेज बी ओपन एंड बी रेडी टू लिसन टू योरसेल्फ, बिकॉज दैट इज योर रियल गुरु, दैट इज योर रियल टीचर, एंड दैट इज योर रियल सेल्फ व्हाट विल टेल यू कि आपको क्या करना है लाइफ में। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। एब्सोल्युटली। અને અમદાવાદ ગુજરાતીઓ, અમદાવાદીઓ, અમારા આખા જે પણ લોકો જોશે, એમને ગુજરાતીમાં કંઈ કહી શકો? કંઈ સરસ મજાનું, જેમ કે હું જલસો કરું છું એવું? હું એક વાત કહું છું कि અહીંયા આકે क्या बोलते हैं, અહીંયા આવીને અહીંયા આવીને જલસો પડી ગયો। क्या એના પણ જલસો પડી જશે। On that note, we wish you all the luck, lots of luck, Sani. बहुत તમે જીવનમાં આગળ વધો અને અંતિ પણ અદ્ભુત કિરદાર ને અદ્ભુત લોકપ્રિયતા તમને મળે એવી અમારી શુભકામનાઓ।
હવે શુદ્ધ દેશી સંવાદમાં તમને એવા કલાકારો પણ જોવા સાંભળવા જાણવા મળશે જે કદાચ ગુજરાતી ફિલ્મો કે સંગીત કે સાહિત્ય સાથે સીધા સંકળાયેલા નથી, પણ કોઈક રીતે પોતાની કલાકારીને શ્રેષ્ઠતા સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. એ રીતે પણ આપણે કરતા રહીશું જલસો. તમે આ એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર અને એપ સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો. બસ કરતા રહેજો જલસો. મળીએ છીએ બહુ જલ્દીથી શુદ્ધ દેશી સંવાદમાં. હું નિશિત અત્યારે આવજો. એક વખત જોરદાર તાળીઓ. हेलो सनी, जलसों में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल राउंड विथ यू, 59 सेकंड विद द स्टार्ट. सो उसके लिए कुछ क्वेश्चन इसमें एक आंसर में, एक वर्ड में आपको आंसर देना है उसका. सो लेट्स स्टार्ट. इंदौर की एक खास बात बताइए इन वन वर्ड. बचपन. बचपन. चूज वन. धोनी और कोहली. धोनी. सुबह उठ के सबसे पहली चीज क्या करते हैं? चेहरा देखता हूँ. मोस्ट मेमोरेबल मैच मेरे को याद आती है. मोस्ट मेमोरेबल मैच 2011 वर्ल्ड कप फाइनल. वन थिंग इन योर बकेट लिस्ट फॉर 2023. 2023 one thing in bucket list. Trip to Europe. ओके. न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो पहले वीक में टूट गया. पहले वीक में टूट गया था. टूटा नहीं यार अभी. ओके. बॉयज ट्रिप, कपल्स ट्रिप. यार ये गलत है. Still, if you have to choose one. You cannot choose one. Okay. If you have to be honest. नेगेटिव रोल या पॉजिटिव रोल? Negative role या positive role? I never think like that, but positive. इंदौर का सराफा बाजार या अहमदाबाद में माणिक चौक? बचपन तो नहीं भुलाएंगे ना यार. इंदौर का- सराफा. आपकी वाइफ आपको गुजराती में कोई ताना देती है, और अगर देती है तो क्या देती है? ताना कह लो, प्यार कह लो, एक चीज कहती है वो, चावला. ओके. पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम अ फैमिली मैन. मिलिंद या कोई और? पर्सनल फेवरेट फ्रॉम फैमिली मैन? या कैरेक्टर. कोई भी. आई लव श्रीकांत तिवारी. योर इंस्पिरेशन. माय द एक्टर अगेन श्रीकांत तिवारी एंड इरफान खान ऑलवेज. संदीप भैया का कोई डायलॉग गुजराती में, if you can translate. टाइम देना पड़ेगा, एडिट कर लेना. Yeah. પાવરનું બલ્બ ભી ચાલે છે એન્ડ પાવરનું કરંટ ભી લાગશે. તમે ડિસાઈડ કરશો પાવરનો યુઝ કેમ કરવાનું છો. Thank you so much. Thank you so much, sir. Really, really love it.